हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, सम फैक्टर्स, सम की फैक्टर्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर, what is fundamental rights, as well as we are going to talking about just the parliamentary system, how the executive powers, how the legislative powers works, and what is the power of the parliament, what is the power of the president, how the parliament comprises into Lok Sabha, Rajya Sabha as well as president. So when we are talking about the constitution, so first of all the wave of nationalism finally hit the constitution and attained independence in 15 August 1947. भारत आजाद हुआ। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन यहाँ पर जब था, उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे डॉक्यूमेंट की, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स विच रेगुलेट द कंट्री, व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट इज द डिसिप्लिन्स विच फॉलो ऑल द सिटीजन्स. सो दैट्स व्हाई द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट which we need that time of the country, so that the document is called the constitution. If we are talking about some key factors about the constitution, so it is adopted on 26 November 1949 and it came effect declaring India to be republic 26 जनवरी 1950. इसका मतलब भारत 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक हो चुका था, गणतंत्र हो चुका था, और जो भारत है यह 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ पार्ट को अडॉप्ट किया था. और ये जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, होल कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था. कुछ जो बेसिक्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको ही 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द कंट्री टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन राइट्स टू इट्स सिटीजन. दीज राइट्स कांट बी टेकन अवे by states even by a law. These are called the fundamental rights. So firstly we will talk about secularism, after that fundamental rights, and after that the parliamentary system. So if we are talking about secular state, so India is a secular state. It has no state religion. All religion are equally treated and no religion is given preference over the other religions. It means जब सेक्युलरिज्म की बात हम लोग करते हैं तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सेक्युलर जो स्टेट होगा उसमें किसी भी जो रिलीजन है, जो रिलीजन को किसी भी अदर रिलीजन के ऊपर उसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा. धर्म और धर्मनिरपेक्षता यानी कि रिलीजन और सेक्युलरिज्म ये अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे. किसी भी जो धर्म है, किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड द सेक्युलर स्टेट. सेक्युलरिज्म गॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉ. सो हाउ इट्स ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉ? It embedded in the Indian Constitution in form of articles, and the Indian Constitution has 448, it means 448 articles as of 2024. But the original Constitution has 395 articles, 25 parts, and 12 schedules. These articles provide the framework for the law in a country. The secular was added to the preamble by the 42 Amendment Act 1976. It means when we are talking about secularism got translated into law, it means जब भारत का जो मूल संविधान था, मैंने आपको बताया उसमें 395 आर्टिकल्स थे. आज 2024 में 448 आर्टिकल हैं और 25
भाग हैं, पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। If we talk about fundamental rights, so Article 12 to I think 35, Article 12 to 35 जो भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिटवीन द आर्टिकल 12 to 35 is called the fundamental rights, and these are right to equality, right to freedom, right to freedom of religion, this is very important, right against exploitation, cultural and educational right, right to constitutional remedies, this is also very important, and these are some 6 fundamental rights. If we are going to talking about the right to equality, all citizens are equal and law provides equal opportunities, यानी कि भारत का जो अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो भारत में सभी को इक्वल राइट्स हैं और जो भी लॉ है वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। तो राइट टू फ्रीडम 19 to 22 जो हमारा आर्टिकल्स उसके बीच का ये पूरा ये राइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम। सो फर्स्ट freedom of speech, freedom of assembly peaceful and without arms, मतलब आप कहीं पर भी असेंबली कर सकते हो लेकिन उसमें आर्म्स का इस्तेमाल यानी जो हथियार वगैरह उसका इस्तेमाल असेंबली को करते समय नहीं कर सकते हो। सो मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आपने कई बार सुना होगा टीवी या समाचार वगैरह में अभिव्यक्ति की आजादी, दैट इज कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आफ्टर दैट द असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप असेंबली कर सकते हो, कोई सभा कर सकते हो, धरना दे सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट दीज आर अलाउड विदाउट आर्म्स, ओके। आफ्टर दैट द फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन, और जो आपका यूनियन है, कोई भी आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, लेकिन वो अगेंस्ट द कंट्री नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। आप अगर कोई भी यूनियन बनाते हो तो वो किसी भी तरीके से कंट्री के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए कि जहां पर इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको किसी भी प्रकार से कोई चैलेंज वहां पर मिले, ठीक है। उसके बाद है मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया। आप थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी आप एनीवेयर इन इंडिया यू कैन गो, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जो सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी कोने में जाकर के रह सकते हैं, बस सकते हैं। आर्टिकल 370 जो कि अभी आपको मालूम है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने उसको अमेंडमेंट किया गया था, तो वहां पर आर्टिकल 370 जो कि कश्मीर में बहुत ही मतलब डिस्क्रिमिनेशन दे रहा था भारत के अन्य पार्ट के लिए, बहुत ही पार्शियलिटी हो रही थी क्योंकि भारत की अन्य जगह के लोग कश्मीर में जाकर के सेटल नहीं हो सकते थे। तो इसी वजह से जो अमेंडमेंट आर्टिकल 370 में हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि भारत में आप किसी भी जगह पर रह करके कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई व्यापार, कोई धंधा, कोई ट्रेड, कुछ भी आप कर सकते हो, बट दैट वाज नॉट इलीगल, वो अवैध नहीं होना चाहिए। नाउ राइट टू एजुकेशन इज आल्सो इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट्स इन 21 इन आर्टिकल 21 इन अप्रैल 2010 में, ठीक है। तो इतनी बातें जितनी अभी हम लोगों ने समझी हैं ये हमने इसमें अभी तक समझा है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से कॉलोनाइजेशन के बाद, जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था वहां से जब भारत फ्री हुआ है उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसने एक्सेप्ट किया है। और आपको बता दूं कि जो भारत जब ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन है, भारत जब अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो वहां पर जो भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को जब एडॉप्ट किया है तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो भारत का जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश का ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो उसके बाद तो जब हमने इन सभी बातों के बारे में चर्चा की कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको बताया कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स थे। आज जो भारत में 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और
25 पार्ट्स हैं। भारत में सेकुलर का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी रिलीजन को ओवर नहीं रखा जाएगा किसी अदर रिलीजन से, किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, तो दैट इज द मीन ऑफ द सेक्युलरिज्म। यहाँ पर सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अगेंस्ट द लॉ, so that why all the Indians, all the citizens of India are equal with against the constitution. So next fundamental right is right to freedom of religion, जो कि आर्टिकल 25 to 28 है। Right to freedom of religion has been guaranteed to the citizens of India. All are equally entitled to freedom of conscience, profess, practice and propagate. भारत में जो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसमें आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं पर भी आप सभाएं कर सकते हो, कहीं पर भी आप उसको लेकर के असेंबली कर सकते हो। ये सारी चीजें इक्वली हैं भारत के हर एक माइनॉरिटी को, जो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग उसको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो डिग्निटी है, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आइदर बाय द स्टेट और द क्लास इन द सोसाइटी। कांट फोर्स एनी काइंड ऑफ लेबर, किसी भी तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता है किसी भी सिटीजन का, वो किसी भी कास्ट के जरिए, किसी भी लॉ के जरिए, किसी भी स्टेट के जरिए उसको एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता, उसे जबरदस्ती कोई लेबर नहीं कराया जा सकता है। और आर्टिकल 24 है, ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 14, जो 14 साल की उम्र के अंदर में आते हैं, उसके अंदर आते हैं, 14 साल की उम्र के अंदर में आते हैं, उन्हें किसी प्रकार से लेबर के लिए या कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, दैट इज इलीगल। सो दैट्स व्हाई द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। And after that we are talking about the right of the cultural and educational right, that is the article between 29 to 30. No citizen shall be denied admission into any educational institute or ground of religion, race, caste, language, any of them. It means कोई भी institution किसी भी सिटीजन को उसकी कास्ट के, उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग, या उसकी रेस यानी रंग भेद जिसको बोलते हैं, या उसका कहाँ का वो नेटिव है, इसके अकॉर्डिंग उसको डिनाई नहीं कर सकता है, वो एडमिशन दे सकता है, और उसको ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। सो अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट whenever the fundamental rights of the person are suppressed. So he can go to Supreme Court, and Supreme Court has the right to protect the person, protect the citizen, given the fundamental rights, secure the fundamental rights conferred by Part 3 of the Constitution. Okay, so we have just discussed about all the fundamental rights, secularism, what is Constitution. Okay, Parliamentary system of India, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो as I have discussed before how the Constitution adopt and explain the parliamentary system. So the Indian Parliament comprises of the President, Lok Sabha, that is called the lower house, and the Rajya Sabha is called the upper house. Lok Sabha, I have talked lower house, Rajya Sabha is upper house, and the elected representative to the house are known as the member of parliament. It means the MPs. As we have said, these MPs are the member of parliament. It means the संसद, जो चुनाव होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, तो जो सांसद किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एक कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्ट होने के लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, उसे बोलते हैं एमपी या सांसद। अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, सो इन राज्यसभा 250 मेंबर्स as MPs, whereas 238 members are elected by the member of states and union territories, and 12 are nominated by the President of India from various fields like literature, arts, science,
सोशल सर्विसेज। मतलब भारत में जो कंपोजिशन है राज्यसभा का, तो 250 मेंबर्स वहां पर इलेक्ट होते हैं, 238 मेंबर्स होते हैं जो मेंबर्स जिनको इलेक्शन मतलब इलेक्ट किए जाते हैं यूनियन टेरिटरीज के जरिए, और उसमें से 12 ऐसे मेंबर हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो लिटरेचर का क्षेत्र हो, चाहे वो जो समाज सेवा का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों से, सभी फील्ड से इनको इलेक्ट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। While in Lok Sabha total MPs या total member of parliament, the total member of parliament is 552, ठीक है। और जहां पर 230 मेंबर 230 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द 20 मेंबर्स फ्रॉम वेरियस यूनियन टेरिटरीज। भारत में जो यूनियन टेरिटरीज है वहां से 20 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, और जो भारत में जो 230 मेंबर उनको भारत के अलग अलग राज्यों से उनको इलेक्ट किया जाता है, और 2 मेंबर हैं जो कि एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन का मतलब होगा कि भारत में जो अंग्रेज जो यहाँ से गए कुछ यहाँ पर रहेंगे, तो जो यहाँ पर रहेंगे उनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। उनको 2 मेंबर्स को डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करता है, ठीक, उनको नॉमिनेट करता है। इसके अलावा अगर टेन्योर की बात करते हैं, लोकसभा की तो 5 साल है टेन्योर जो कार्यकाल है, और टेन्योर ऑफ द राज्यसभा दैट इज 6 ईयर। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, द कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द टू द लोकसभा और राज्यसभा, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करते हैं, वहां पर उसमें इलेक्शन के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। 25 साल की उम्र होनी चाहिए, 25 ईयर ओल्ड होनी चाहिए आपकी उम्र फॉर द लोकसभा, और जो राज्यसभा है वहां पर नॉट बिलो टू द 30 ईयर, ठीक है ना, 30 साल से नीचे की उम्र नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट होल्ड एनी ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र के अकॉर्डिंग कोई आप लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन टू द ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद बात करते हैं द ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर अकाउंटेबल फॉर पार्लियामेंट इफ गवर्नमेंट डज नॉट वर्क प्रॉपरली इन सच सिचुएशन। ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। अगर ये अकाउंटेबल नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो भी मिनिस्टर्स हैं और उनके साथ ही अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से होल्ड नहीं करते, उसको अच्छे से निभाते नहीं है, तो वो उन्हें रिजाइन करना पड़ सकता है। अगर बात करते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट हैव डिफरेंट पावर्स एज लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्टोरल पावर, जुडिशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल पावर। पार्लियामेंट की जो पावर्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जो लेजिस्लेटिव पावर है या जो एग्जीक्यूटिव पावर है, इलेक्टोरल पावर है, जुडिशियल पावर है, तो इन पावर के अकॉर्डिंग जितने भी एमपीज हैं, चाहे वो मंत्री मिनिस्टर्स हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इक्वली अगेंस्ट द पार्लियामेंट। सो दिस इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। भारत का चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर वो इलीगल वर्क करता है तो उसको उसके पद से, उसकी पोस्ट से उसको हटाया जा सकता है बाय द प्रोसेस। और अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 है, वो बताता है कि स्टेट्स इंडिया हैव अ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 53 talk the president is supreme in India, is the first citizen। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस अंडर द स्टेट और द टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसकी एज की बात करता हूं तो 35 उसकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो उसका टेन्योर है वो 5 ईयर के लिए भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही होल्ड द ऑफिस फॉर द 5 ईयर। पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव पावर इसके पास है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है,
emergency power, that is very important. Emergency power is very important and the judicial power is also very important. Okay, अगर बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर्स की, तो मैंने बताया कि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जुडिशरी पावर होती है, इमरजेंसी पावर्स होती हैं। अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। as I have said before, the parliament comprises president, Lok Sabha and the Rajya Sabha. When we are talking about emergency power, so the constitution provides the president of India 3 emergency powers, as when he can declare of emergency when due to war, external or internal rebellion, the money crisis, that is the second emergency power, as well as he can declare of emergency due to the failure of constitution machinery. So that is 3 kinds of emergency powers of the president of India. He can declare all the kinds of emergencies. He have all the powers at that time in emergency. So these are some powers of president. I have discussed judicial power, किस तरीके से उसके पास judicial power है, जिसमें वो reprieve, remission, commutation, respite, ये सारी चीजें कर सकता है। इमरजेंसी की उसके पास पावर है। जुडिशियल पावर की मैंने आपको बात बताई। लेजिस्लेटर पावर में जब तक उसके साइन नहीं होंगे तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर की बात की मैंने, जहां पर वो कुछ अपॉइंटमेंट्स करता है गवर्नर्स के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के, कमिश्नर्स के, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशंस जो रैंक्स हैं इनको भी वो अपॉइंट करता है। सो ये उसके बहुत सारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और इस ये जो इमरजेंसी पावर्स हैं इन सभी को प्रेसिडेंट होल्ड करता है। और दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53 ही इज द हेड ऑफ द इंडियन टेरिटरी। ओके, सो दैट इज ओवरऑल द बेसिक और की फैक्टर्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, लेजिस्लेटिव or the parliamentary system. So I hope you will enjoy this video कि ये ग्रोथ को थोड़ा सा बढ़ाएगा, आपकी हेल्प करेगा आपकी नॉलेज को बूस्ट करने में। वीडियो को अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जो भी और सुधार किए जा सकते हैं, अगर कोई कहीं पर कमी है तो उसको और सुधार किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।